good evening to all of you. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be doing really good. Today we are going to discuss something which is very important from our skin's points of view, from our appearance point of view, and I'm talking about acne and acne management, especially during teenage or adolescence. When we attain puberty, that's when there is a lot of hormonal changes happening, and that's when most of us see these acne on our face. So that's one issue. Then we have those who have oily or acne prone skin. They have their own issues. Then we have people who get, or who see a lot of acne during their adulthood, during menopause, etc., especially women, of course. So it's very important to talk about acne and how to prevent acne, what to take care of, how to take care of your skin, and also how to manage acne. And for that, today we have with us Dr. Rashmi Rastogi joining us from Kanpur. So she's a renowned skin expert there, and she is an MBBS, DDBL, FAM, a distinguished dermatologist and founder of Fortune Skin Clinic. With over a decade of experience, she specializes in dermatology, venereology, leprology, and aesthetic medicine as well. Trained at King George Medical College, Lucknow, Dr. Rastogi is recognized for her expertise in dermatosurgery, cosmetology, hair transplantation, and laser treatments, dedicated to delivering advanced skincare solutions with compassion and precision. Passionate about advancing skincare and aesthetics, Dr. Rastogi established Fortune Skin Clinic to provide comprehensive dermatological solutions, specializing in dermatosurgery, trichology, cosmetology, hair transplantation, and laser treatment options. Her commitment to patient-centric care and cutting-edge treatments have earned her recognition among peers and patients alike. So today we are going to be joined by Dr. Rashmi Rastogi shortly. And the topic that we are going to discuss today is going to be acne management. I'm sure most of us has gone through that phase of acne, especially during our teenage or young adolescence, and treating acne at times seems easy than treating the post-acne pigmentation or scars or pits that they leave behind. So it's very important to understand that how to prevent the formation of acne, of course, and then also the formation of these scars or marks or pits, etc., because they look really bad on our face. And it's just not about looking good or bad. It's just not about appearance. It's also that acne deep down hampers our self-confidence. Many times people go into depression. Those who are prone to having acne, etc., they feel that it's hampering them so badly. So it's equally important to understand that it also have a psychological impact. So today we'll try to talk about all of it, how to take care of your skin, what are the basic skincare routine that we can follow. Now the problem is, in today's world, we are flooded with information, we are flooded with products. We have so many influencers or various social media platforms who endorses various products, and we fall for them, because all of them, each one of those products looks so promising. But then it's important to understand that experimenting with our skin is not a very great idea, because skin is the largest organ of our body, plus it also reflects what's going on inside us. So if you are happy, if you are healthy from inside, it will get reflected on your स्किन. बहुत बार आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि आज तो चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या बात है. तो बात असल में खुशी की होती है. इसीलिए हमारा चेहरा, हमारी स्किन सब कुछ बयां करती है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन. तो स्किन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. Another very important thing that we would like to discuss with our skin experts of today is about the OTC drugs or OTC products. A very, very common thing that we all do
or have surely done is to go to a chemist shop and say, see, I'm having these pimples, acne, blackheads, whiteheads, whatever. Recommend something. They recommend a cream to us and we start applying it blindfoldly. And that's where the problem, lies. Initially, because most of those creams have steroids, so they work wonderfully on us. So हमें तो लगता है कि अरे वाह जादुई क्रीम हाथ लग गई है और देखो हमारी स्किन कितनी अच्छी हो गई, एक्ने भी ठीक हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा. पर धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारी स्किन दरअसल एडिक्ट हो गई है उस ट्यूब की, उस क्रीम की. और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जिस दिन हम वो क्रीम नहीं लगाते उस दिन कुछ एक नया ब्रेकआउट हो जाता है, स्किन थिनिंग होने लगती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं. तो ये एक्ने तो एक तरफ, एक्ने इज देयर, वो तो है ही एक प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ बहुत दूसरी चीजें आ जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट नॉट टू डू. क्या नहीं करना है ये समझना बहुत जरूरी है और आज यही हम करने जा रहे हैं. हमारे स्किन एक्सपर्ट के साथ इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे. आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस regarding acne management, regarding having a good, spotless, flawless skin. So, in case you have any doubt or any questions pertaining to acne and acne management, please write to us. कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हम आपके सवालों को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर से जानना चाहेंगे कि उनके जवाब क्या है उन सवालों के. और मेरे तो कुछ सवाल है ही, because as I said, most of us has gone through that phase of acne and we know how difficult it is to stay cool and calm when you have acne. So what to do, what not to do is going to be our line of conversation, and shortly we are going to be joined by Dr. Rashmi Rastogi, who is our skin expert of today's. So today we'll talk about acne. Acne vulgaris is a chronic condition affecting more than 85% of adolescents and young adults. Yet despite its prevalence, there are still widespread misconceptions and stigmas surrounding acne. That's why today's live aiming to dispel myths, promote understanding and empower individuals to seek effective treatment. So today we are diving into the topic of acne management with our skin expert. Whether you are a struggling, one with breakouts yourself, or simply curious about maintaining a good skin, clear skin, healthy skin, this session promises to be both informative and engaging. So today's skin expert is Dr. Rashmi Rastogi, a renowned skin expert from Kanpur, and she has her own skin clinic over there called Fortune Skin Clinic, and she is an expert in dermatosurgery, cosmetology, hair transplantation, laser treatments, etc. So from her we will also try to understand what are the latest technology that is available in treating acne. So medication, topical application, I'm sure is one thing, lifestyle management or modification is one thing, but then these procedures are also there to take care of your acne. कई बार होता है ना कि मान लीजिए कल शादी है, एंगेजमेंट है, कोई बड़ा फंक्शन है, आपकी ही शादी है और अचानक से एक ब्रेकआउट, तो क्या करें? प्लीज इधर उधर नहीं जाइए, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए. कैसे आप समझेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है? उनके पास डेफिनेटली डिग्री होगी MBBS की, MD की, DDVL की इन डर्मेटोलॉजी. और ऐसे में जब आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा आपके एक्ने का. तो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या है एक्ने मैनेजमेंट को लेकर, ऑल्सो पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स एंड पिट्स, व्हाट procedures we have and how beneficial they are going to be for us. ये सब हमारे आज के टॉपिक होंगे जिन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रश्मि रस्तोगी से. तो आज ये पूरा सेशन हम लेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक्ने को लेकर, एक्ने मैनेजमेंट को लेकर. आपके भी अगर सवाल हैं, ढेर सारे होंगे आई एम श्योर, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं सब पूछने वाली हूँ डॉक्टर से. अगर आपके सवाल है तो वो भी आप पूछिएगा. जिन सवालों को डॉक्टर ने एड्रेस नहीं किया होगा, मान लीजिए पूरी बात हो रही है लेकिन वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं उस पर बात नहीं हुई, तो भी वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो बस कुछ ही देर में शॉर्टली वी आर गोइंग टू बी जॉइंड बाय डॉक्टर रश्मि रस्तोगी और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने एक्ने को
कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स एज एन क्या करें कि जिससे एक्ने ना हो, या अगर एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ऑयली स्किन है तो हम क्या कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि maybe because I have a oily skin, so I'm accumulating more dirt, so they keep on cleansing their face again and again, बार बार चेहरा धोते हैं पानी से या फिर दूसरे क्लिनजर्स से। अच्छा, एक और हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी है, हमें लगता है कि जब तक फेस वॉश से बहुत सारा झाग नहीं आ रहा हो तो मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है, जितना झाग होगा उतने अच्छे से हमारे डर्ट्स निकल जाएंगे चेहरे से। तो क्या ये सही है? तो जितने ही मिथ्स होते हैं, या ऑयली फेस है तो हमें मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है या नहीं, सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है या नहीं अगर हम बहुत ज्यादा। डॉक्टर हमारी स्किन एक्सपर्ट इस सेशन की है डॉक्टर रश्मि रस्तोगी। तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे एक्ने से हम बच सकते हैं। तो यही जानने की कोशिश आज इस सेशन में हम करेंगे। हाउ टू कीप आवर स्किन हेल्दी, क्लियर, ग्लोइंग, and how to take care of acne in case you have it. A, how to prevent acne, and B, in case you have acne, then how to address that. So these are some of the questions that we'll like to address. और साथ ही साथ मेंटेनेंस थेरेपी, एक बार मान लीजिए एक्ने ट्रीट हो भी गया है तो मेंटेनेंस थेरेपी किस तरह से हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो एक्ने को लेकर आज पूरी बातचीत होगी और इस सेशन में हमारे साथ होंगी डॉक्टर रश्मि रस्तोगी जो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो एक्ने पर आज हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि रस्तोगी। A very warm welcome to you, Dr. Rashmi Rastogi. Very good evening to everyone who is in this session. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं एजुकेट कर पाऊं किसी को भी। It's such a pleasure, doctor, to have you with us. Doctor, just a small request, क्या आप अपने फोन को vertical position में ही रख सकते हैं? Yeah, right, that's the way. So thank you so very much, doctor, for joining us. एक्ने पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे एक्ने क्यों होता है, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो एक्ने क्यों होता है और कितने टाइप्स या ग्रेड्स होते हैं एक्ने? एक्ने देखिए, हमारे बॉडी ने सब बहुत अच्छे से पूरा भगवान ने डिजाइन किया है हमारी बॉडी को। हर एक बाल के नीचे एक ऑयल ग्लैंड मौजूद है जो आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सपल रखने के लिए और उस हेयर को भी मॉइस्चराइज रखने के लिए बनी हुई है। क्या होता है जब एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है, कारण आपकी डाइट हो सकती है, कारण आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो कभी कभी आपके जो ऑयल ग्लैंड्स का जो एक्सक्रीशन है वो ब्लॉक होने लगता है। तो जब वो ब्लॉक हो जाता है एक छोटा सा दाना बन जाता है आपकी स्किन पे, उसको हम एक्ने कहते हैं। और इसके कई सारे ग्रेड्स होते हैं। जब शुरुआती दाना होता है तो उसमें सिर्फ ऑयल भरा होता है, तो एक छोटा सा व्हाइट हेड जैसा एक छोटा सा आपको दिखता है दाना, तो हार्ड होता है फील होने के लिए। फिर यदि वो और एक्सपैंड करता है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसके एयर से थोड़ा एक्सपोज हो जाता है जिसको हम, और एयर के एक्सपोजर के तुरंत बाद ही वो काला पड़ जाता है जिसको हम ब्लैक हेड कहना शुरू कर देते हैं। जितना भी हम लोग अपनी भाषा में इसको क्लोज्ड और ओपन कोमेडोन्स कहते हैं। ओपन कोमेडोन माने ब्लैक हेड जो खुल गया है एटमॉस्फेयर की तरफ, और क्लोज क्रोमेडोन यानी व्हाइट हेड जो बंद हो गया है, बंद है अभी। उसके अलावा जब और इन्फेक्शन बढ़ता है तो यही दाने और बड़े होके लाल लाल मोटे दाने हो सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कलेक्शन में एक्सट्रूशन नहीं हुआ तो बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है जिसकी वजह से दाने पकते हैं और बड़े बड़े फोड़े जैसे भी बन जाते हैं एक्ने। तो हर फॉर्म का एक्ने होता है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल छोटे से लेके बहुत बड़े, बहुत पेनफुल एक्ने भी होते हैं जैसा कि आपने बताया। और डॉक्टर, एक बहुत आसान और बहुत ही कॉमन टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में, कुछ अप्लाई कर लिया, एक्ने हुआ तो पिंपल हुआ है, कुछ लगा लो उस पे, तो हम टूथपेस्ट, गार्लिक कुछ नहीं छोड़ते, हम सब लगा लेते हैं। एक और कॉमन टेंडेंसी है, हम
पास वाले केमिस्ट शॉप पे चले जाते हैं कि भैया देखो कुछ हो गया है तो कोई क्रीम दे दो, या फिर आजकल तो इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो हम सब कर लेते हैं। बाद में जब हमें रियलाइज होता है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है या एक्ने अपनी तरफ कुछ दूसरी समस्याएं और होने लगी है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो है होम रेमेडीज या ओवर द काउंटर एप्लीकेशंस या इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं वो सब ट्रायल एंड एरर करना, ये कारगर है या इसके नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल ये कारगर कुछ हद तक तो हो सकता है इफ यू आर लकी इनफ, अदरवाइज डोंट बिलीव। जिसको जो इस बात का एक्सपर्ट है, जिसको इस बात की नॉलेज है, आप उससे पूछिए। घरेलू नुस्खे कई बार आपको एडवर्स इफेक्ट भी कर सकते हैं। इफ यू आर लकी इनफ आपको फायदा कर गया, ठीक है, पर अगर आप किसी भी वजह से अनलकी हुए तो आप ज्यादा डैमेज कर देंगे अपनी स्किन को बजाय कि फायदा होने के। क्योंकि इस बात के लिए ट्रेंड है कि आपका कोई स्किन डैमेज ना हो, हम आपको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं एंड वी नो हाउ अ वैरायटी ऑफ पेशेंट रिएक्ट्स, सो वी आर द बेस्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट एक्ने। आप जो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, influencers are good enough, but they should keep their advices to home care and everything, not skin care. Skin is very very precious. आपकी स्किन डैमेज हो गई तो दे विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो मीट एन एक्सपर्ट, टेक अ रेजीम, एक बार बात कर लीजिए डॉक्टर से, अपनी समस्या बता दीजिए। हो सकता है वो आपको परमानेंट लाइफ लॉन्ग एक मेंटेनेंस थेरेपी बता दे। तो आप इन्फ्लुएंसर्स के उसमें मत जाइए, उनका एक्सपीरियंस ठीक है बट इट कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन। ऑल और नन लॉ अप्लाई नहीं होता है इसमें। बिल्कुल, सबकी अलग स्किन है, अपनी अलग प्रॉब्लम है, अलग स्किन टाइप है। बस ये बहुत जरूरी है कि पहले प्रॉब्लम डायग्नोस हो और फिर उसका इलाज हो, और ये कर सकता है सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर, एक बहुत बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है? आमतौर पर लोग इसको लेके बड़े फंसी रहते हैं, खासतौर पे वो लोग मान लीजिए जो टीनेजर्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है। क्या करें कि स्किन को हम हेल्दी रख सके? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग वैसे CTM कहते हैं, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, थोड़ा सा डर्मेटोलॉजी में ये हम लोग डिफरेंस रखते हैं इस बात के लिए। क्लेंजिंग होती है, टोनिंग के बजाय हम सीरम देना चाहते हैं, और मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। देन वी ऑल्सो एड अ सनस्क्रीन ऑल्सो। sunscreen is very integral part of our skincare routine. So अगर आप cleansing करें, सीरम लगाएं, मॉइस्चराइजर लगा के आप सनस्क्रीन लगा लेंगे, तो ये आपका बेसिक रूटीन आपका फॉलो हो जाएगा। सीरम्स बहुत तरह के आते हैं, सीरम हर तरह की समस्या के लिए आते हैं, तो यू चूज अ सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड यू विल गेट बेनिफिशियल रिजल्ट। योर हम हमेशा, मैं तो भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बायोलॉजी, जब भी मैं पढ़ती हूँ स्किन की कुछ भी टेक्स्ट बुक्स, तो उन्होंने इतना अच्छा मैकेनिज्म स्किन प्रोटेक्शन का, एवरीथिंग ही हैज मेड। यू डोंट हैव टू ऑल्टर इट टू मच। थोड़ा ही करिए, ज्यादा बहुत एक्सेसिव एक्सपेरिमेंट अपने स्किन पे ना करिए। बिल्कुल, तो एक क्लेंजर, एक सीरम जैसा कि आपने कहा, एक मॉइस्चराइजर, और सनस्क्रीन कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर स्किन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए? सनस्क्रीन सनस्क्रीन जैसे मैंने बोला कि बहुत बहुत जरूरी है, और सनस्क्रीन के बहुत फायदे हैं। एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही नहीं, सभी लोगों को सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। एक्ने प्रोन स्किन में सनस्क्रीन और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है और ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, स्किन लाल हुई पड़ी है, धूप या सूरज या हीट से वो और जलेगी और इरिटेट होगी, तो आपको सनस्क्रीन उससे प्रोटेक्ट करती है। और एक बात और है, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं एक्ने का, तो जितने रेटिनॉल्स हैं या मोस्टली रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, दे मेक योर स्किन सन सेंसिटिव। तो आपने हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा लगाने से हमारा तो लग रहा है स्किन कलर काला सा हो रहा है। वो सनस्क्रीन उससे भी बचाती है आपको। तो सनस्क्रीन हमेशा जरूर लगानी चाहिए, चाहे आप इंडोर्स हो आउटडोर्स हो। आप अपने पास अपने हमेशा कैरी करिए। सनस्क्रीन हमेशा आधे घंटा पहले लगनी है, स्किन में निकलने से पहले, हर 3 घंटे पे रिपीट होनी है। और यदि आप मेकअप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट्स में जा रहे हैं,
तो आप रात में भी सनस्क्रीन लगाकर ही उसके ऊपर मेकअप प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रहेगी। अरे वाह। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई बार कहा जाता है कि अरे एक्ने हो रहे हैं, ये मत खाओ, वो मत पियो, दूध मत पियो, डेयरी प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कि वो एक्ने से कोरिलेशन है, चॉकलेट्स, डीप फ्राइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप किस तरह की डाइटरी प्रिकॉशंस देना चाहेंगे? देखिए लिस्ट लंबी है। सबसे पहले तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो इंसुलिन ज्यादा बढ़ा दें वो वाले फूड्स हम अवॉइड करते हैं। बहुत अत्यधिक शुगर और बहुत अत्यधिक आपको गरिष्ठ जो भोजन होता है, बहुत कैलोरीफिक फूड, मैदा, फास्ट फूड, ये अगर अवॉइड करेंगे तो आपको एक्ने में डेफिनेटली राहत मिलेगी। उसके अलावा एक कॉमन मिथ है या लोगों को जानकारी नहीं है कि दूध से भी एक्ने होता है। मिल्क या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में अगर आप ये चीज वॉच करना शुरू करें कि यदि आपको एक्ने हो रहा है और कहीं मिल्क के प्रोडक्ट से, तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिल्क में काऊ या के हॉर्मोन्स होते हैं एंड एक्ने इज मोस्टली हार्मोनल। So try to avoid milk products if you feel like your acne flares up while consuming milk based products। और ये प्रोटीन रिच होते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ाते हैं, तो फिर एक्ने कर देते हैं। उसके अलावा जो चॉकलेट या ग्रीसी फूड होते हैं, ऑयली फूड, चॉकलेट के लिए बहुत सारे रिसर्चेस हैं, हम तो वैसे मना ही कर देते हैं, पर ऐसा कोई ऑथेंटिक हमारे पास फुल प्रूफ कोई प्रूफ नहीं है कि चॉकलेट मना करनी चाहिए। चॉकलेट खा सकते हैं पर एहतियातन खा सकते हैं। उसके अलावा जो डाइट में फायदा करता है, जिंक युक्त उत्पाद, जिंक इज वेरी गुड एंटी एक्ने सब्सटेंस। क्रीम में हम लगाते हैं, हम खाने के लिए अलग से जिंक देते हैं, तो वो आपका एक्ने कंट्रोल करता है। तो यदि किसी फूड में जिंक है तो आप आराम से उसको कंज्यूम करिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाइए, फल सब्जी, मौसमी फल सारे खाइए, देखिएगा आपको आपकी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ओमेगा 6 बिल्कुल। फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो भी एक्ने को वर्सन करते हैं। जी बिल्कुल, तो खान-पान का भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्किन और बेहतर होगी। और कहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर होगा, आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होगी तो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होगी ही। डॉक्टर, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू विद एक्ने, आर देयर एनी टेस्ट दैट यू नॉर्मली रिकमेंड कि क्या हुआ है, डायग्नोस करना है, रूट कॉज क्या है, और जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू आर श्योर कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह प्रोबेबली ये होगी? देखिए मोस्टली हमको पता चल जाता है, क्लिनिकल असेसमेंट प्रॉपर हो जाता है, तो कई बार मुझे जरूरत नहीं पड़ती है कि हम उनका हार्मोनल असेसमेंट कराएं। पर जैसे कि कोई यंग लेडी है जो एक्ने लेके आई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसकी डिस्टर्ब्ड है और फेशियल हेयर्स भी हैं, तब हमारा शक एक्ने के लिए ज्यादा जाता है। या लोअर फेस एक्ने है तो हार्मोनल एक्ने के लिए ज्यादा टेंडेंसी जाती है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम एक्ने का रूट कॉज जानने के लिए कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराएं। उसके अलावा बाकी मोस्टली सारे एक्ने हम लोग क्लिनिकली देख के, पेशेंट को देख के, पेशेंट की हिस्ट्री लेके, पेशेंट की एज के हिसाब से, और क्या वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था या कोई मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है, उससे हम पता लगा लेते हैं। मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है, बस जहां हमें शक होता है कि ये हार्मोनल एक्ने का केस हो सकता है, वहां पर हम जांचें कराते हैं। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल है? किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है एक्ने को? एक्ने में जब देर आर वाइड वैरायटी ऑफ नाउ एक्ने ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड दे आर वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव। एक्ने में हम मेडिसिन चलाते हैं। पहले तो हम टॉपिकल मेडिसिन से ही स्टार्ट करते हैं कि क्रीम लगा लो, एप्लीकेशन कर लो, प्रॉपर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन एंड एंटी एक्ने मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन हम पेशेंट्स को देते हैं। पर मोस्टली जब तक पेशेंट हमारे पास आता है तो छोटी तकलीफ के लिए नहीं आता, थोड़ी बड़ी तकलीफ हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स भी हमें देने पड़ते हैं। कई बार हमें कई बार स्टेरॉइड्स का भी यूज करना पड़ता है कि जब बहुत ज्यादा एक्ने है और स्कारिंग होने का डर है, तो हमें फिर स्टेरॉइड का भी यूज करना पड़ता है। नहीं तो परमानेंट एक्ने तो ठीक हो जाएगा, स्कार भी पड़ सकता है, इस बात का भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा अब मॉडर्न ट्रीटमेंट भी बहुत सारे आ गए हैं कि हम प्रोसीजर्स कर पाते हैं। केमिकल पील्स हैं, लेजर्स हैं, फ्रैक्शनल लेजर है, क्यू स्विच लेजर है, पल्स लाइट लेजर है, ब्लू लाइट थेरेपी है। उसके अलावा
डर्मा रोलर ट्रीटमेंट है जो एक्ने स्कार्स को आराम देता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो अब नए आ गए हैं और लोग इस बारे में अवेयर नहीं है। अगर वो उनको पता है, अगर उनको लगता है कि एक्ने है या एक्ने स्कारिंग है, तो मेरी यही सलाह है कि अपने आप अब छोड़िए नहीं। अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अब बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आपकी स्किन का हर दाग, हर धब्बा, हर गड्ढा ठीक किया जा सकता है काफी हद तक। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे एक्ने हो या एक्ने स्कार्स हो, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन, मार्क्स एक्सेट्रा। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अगर हम जाएं डॉक्टर, प्रिवेंट कैसे हम खास तौर पे एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स को कर सकते हैं? क्या करें जिससे एक्ने स्कार्स ना हो? देखिए, सबसे पहले तो एक्ने मार्क्स जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको एक्ने मार्क्स होने का ज्यादा डर रहता है। दूसरा, इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने पूरे उसमें लगा लिया, ध्यान से नहीं लगाया, तो भी स्पॉट्स आ जाते हैं। एक्ने मार्क्स के लिए सनस्क्रीन लगाइए, वो प्रिवेंशन के लिए। और यदि ऐसे एक्ने मार्क्स हो भी जाते हैं तो हम कलर करेक्शन के लिए क्रीम्स देते हैं जो ठीक हो जाते हैं। और केमिकल पीलिंग उपलब्ध है, लेजर लाइटनिंग हो जाती है, लेजर से लाइट कर देते हैं एक्ने का मार्क्स, वो ठीक हो जाते हैं। एक्ने स्कार्स के लिए प्रोसीजर्स हैं, जैसे एमएनआरएफ है, CO2 लेजर है, ये अर्बियम यैग लेजर या रीसर्फेसिंग होती है, और TCA पील है। ये सब एक्ने स्कार्स को बहुत अच्छा कम करते हैं। और पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उनको हाथ न लगाएं। यदि आप बड़ा होने देंगे, उसको बड़ा फोड़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली निशान आएगा। तो आप उसको छूने की कोशिश ना करें, उसको दबा के हटाने, वो हटेगा नहीं, वो निशान छोड़ के जाएगा या गड्ढा भी छोड़ सकता है। तो इसलिए खुद में मैनिपुलेट मत करिए। और जब भी फ्लूइड आप मैनिपुलेट करते हैं तो बैक्टीरिया आसपास के भी एरिया में आता है और वो और एक्ने आपको करता है, इसलिए ये ना करिए। और एक चीज खास बात मैं जरूर ध्यान में डालना चाहूंगी, जिनका जो भी हमें देख रहे हैं, कि यदि आपको एक्ने की बाद स्कारिंग होती है तो आप अपना एक्ने अग्रेसिवली ठीक कराइए, क्योंकि एक भी एक्ने अगली बार गड्ढा करेगा आपको। राइट, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं कि हम किस तरह का क्लिंजर इस्तेमाल करें, किस तरह का मॉइस्चराइजर, किस तरह का सनस्क्रीन, खास तौर पर अगर हमारी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो। क्लेंजर हमेशा हम ऐसा देते हैं जो आपका थोड़ा ऑयल बिल्डअप कम करे। तो मेनली हम लोग सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड बेस्ड वॉशेस आपको देते हैं। सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा क्लेंजर होता है। साथ में अगर जैसे बहुत बस एक्ने प्रोन स्किन है, ज्यादा एक्ने नहीं है, तो टी ट्री ऑयल वाले बेस्ड क्लेंजर्स भी आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स में खास ख्याल रखिए, हर मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा। मॉइस्चराइजर का लेबल जरूर देखिए, उसमें नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा होना चाहिए, यानी जो कॉमेडोन ना बनाता हो, यानी जो ऑयल बिल्डअप ना करता हो। तो नॉन कॉमेडोजेनिक ही मॉइस्चराइजर यूज करिए। आपको स्किन में ड्राइनेस भले लगे, आप कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, लेबल पढ़ेंगे नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, और नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन ही लगाएंगे। सनस्क्रीन जेल फॉर्म्स में भी आती है और क्रीम फॉर्म में भी आती है। आप एक्ने के लिए हम प्रेफरेबली जेल फॉर्म देते हैं, बट क्रीम फॉर्म में भी अगर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा है, आजकल तो कॉम्बिनेशंस आने लगे हैं बहुत अच्छे, ऑयली स्किन की सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइजर मिक्स आने लगा है, वो भी आप ले सकते हैं। एंड मेरी सलाह यही है कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बताई हुई सनस्क्रीन ना लगाएं। फार्मास्यूटिकली बनी हुई सनस्क्रीन भी वो दवा जैसी नहीं महकती है, वो बिल्कुल कॉस्मेटिक अपीयरेंस देती है और वो बेहतर होती है, चाहे थोड़ी सी भले ही महंगी हो, पर आपकी स्किन को बचाए रखेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर, इस पूरे सेशन को हम सम अप करते हुए क्या संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपको एक्ने है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, डाइटरी चेंजेस आप करिए, आप अपना स्किन केयर रूटीन चेंज करिए। इसका मतलब आपको एक्ने हो रहा है, यदि आपका ऑयल सिक्रीशन सही है या आप क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सही कर रहे हैं, तो आपको एक्ने नहीं आएगा, भले ही आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो।
और यदि उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, एक मेंटेनेंस प्लान बनवा लीजिए। और एक्ने यदि हो चुका है तो उसका भी ट्रीटमेंट है, स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। निराश नहीं होना है और आपको हमेशा एक डॉक्टर से मिलिए, बहुत सारे नई तकनीक आ गई है, आपको कुछ ना कुछ फायदा आपको सूट करता हुआ आपके हिसाब से टेलर मेड आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, बस जरूरत इस बात की है कि अगर स्किन में कुछ भी ठीक नहीं है, एक्ने है, कोई और प्रॉब्लम है, तो प्लीज गो टू द राइट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रश्मि रस्तोगी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो काफी मच। इंफॉर्मेटिव हमारा ये सेशन था। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। And viewers, thank you for your active participation. Stay happy, stay healthy, and take care of your skin and your health. Goodbye.